Hello friends, welcome to 7th edition of our April 2023 current affairs. In this we are going to cover security topic. Before moving to the first topic, I just want to make you aware about our initiative. In this initiative, we are going to provide you Vision Monthly magazine in the crispest form, that is hardly one third of the original magazine and at a very nominal cost of 599 rupees. To get the PDF of this video, you have to enroll in our course. The first month's video is free for all, and the first month's PDF is free for all. It will be provided after 15th December, and for the future subscription, you have to enroll in our course. You can enroll by paying on this QR code, and you can mail your payment slip to wowindiais@gmail.com. Now let's come back to the first topic itself. So जो पहला टॉपिक है आपका वो है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस. Now, the CDS, Chief of Defence Staff, in the Indian Defence Space Symposium has discussed about weaponization of space. So that's why this topic is in news. This IDSS, Indian Def Space Symposium, it is organized as a part of Mission Defence Space by Indian Space Association and DRDO. So ये दोनों इसको organize करते हैं. This Mission Defence Space, it is Indian government's initiative to develop innovative solutions for defense requirement in the space domain. So there are various challenges that are for startups, innovators, जिनके लिए इनको solutions provide करने हैं. And these challenges have been categorized into existing Department of Defense production, innovation for defense excellence, make 1, make 2 schemes. Now let's come to the main topic, that is weaponization of space. What is weaponization of space? Weaponization of space is putting weapons in space or in celestial bodies along with developing weaponry that can travel across space as well as from earth to destroy targets in outer space. तो यानी स्पेस के अंदर किसी भी चीज, किसी भी और इंस्ट्रूमेंट और वेपन को डिस्ट्रॉय करना, उसे हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस. तो हो सकता है कि ये अर्थ से लॉन्च किया जाए या स्पेस के अंदर ही उस वेपन को इंस्टॉल किया जाए. सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस? First of all is to safeguard satellites in the space against other countries' anti-satellite missiles. So some countries like China, USA, then Russia, they have developed this anti-satellite missiles. So इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस. तो इसके लिए कंपेल करता है अदर कंट्रीज़ को कि वो वेपनाइज करें खुद को. देन एनहांसिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, उनको एनहांस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. Then the fourth dimension of the warfare, both China, Russia as well as USA want to dominate this area. So that's why they need weapons in the space. Then we were talking about anti-satellite missiles. So China in 2007 has conducted its anti-satellite missile test, and India under Mission Shakti in 2019 also joined this club. So currently US, Russia, China and India are the only 4 countries that have this anti-satellite missile technology. Now next is insufficient existing treaties. So already जो outer space treaty है वो weapons of mass destruction को तो prohibit करती है कि space को उसके लिए use नहीं किया जाएगा, पर जो non weapons of mass destruction है उनके ऊपर उनके concerns को ये treaty address नहीं करती. ना अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो पहला तो है मिशन शक्ति, जिसके अंडर इंडिया हैज डेवलप्ड द एंटी सैटेलाइट मिसाइल. देन डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो एक ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की. देन डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, जो कि स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम क्रिएट और टेक्नोलॉजीज क्रिएट करता है. देन इंडिया हैज नाविक और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि इंडिया को एक प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इंडिया को प्रोवाइड करता है, इसमें इंडिया खुद के नेविगेशन सिस्टम के थ्रू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड तक की इंडियन बाउंड्रीज को कंट्रोल कर सकता है या उसमें अपने नेविगेशन को देख सकता है. द नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस एक्स. तो ये क्या है? स्टिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइजेज है. देन अगर हम ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें टू कंट्रोल द वेपनाइजेशन, सो फर्स्ट वन इज आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967. इट बैन्स स्टेशनिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. देखो मैंने पहले ही बोला था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए तो बैन लगाता है कि आउटर स्पेस में दे कैन नॉट बी पुट इन द weapons of mass destruction cannot be put in the outer space. Also it prohibits military activities on celestial bodies and details legally binding rules governing the peaceful exploration and use of space. Second is partial test ban treaty. It also says कि nuclear weapon test cannot be conducted in the atmosphere, in outer space or under water. Next is
prevention of outer space arms race or PAROS. So this is a its objective is using space for peaceful purposes, avoiding arms in the race. Next is Sino-Russian proposal, in which they have forwarded one initiative known as prevention of placement of weapons in outer space and threat. The European Space Agency's code as well as US Artemis Accord. So all these things are related with protecting weaponization of the space. Then what can be the implications of this space weaponization? फर्स्ट ऑफ ऑल राइज इन स्पेस डेब्रिस, क्योंकि जितने वहाँ पे वेपन्स जाएंगे उतना ही हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जिसकी वजह से जो स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ जाए. तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे विल बी अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट. नेक्स्ट इज narrowing already scarce radio frequencies and orbital slots. The constriction limits the scope of activities for commercial space enterprises. Then triggering space arm race, affecting critical infrastructure. Satellite play a crucial role in supporting the various aspects of Earth's critical infrastructure. तो अगर सैटेलाइट्स के ऊपर कोई चीज़ कोई अटैक होता है तो किसी भी नेशन का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ही होगा, बिकॉज जो इंटरनेट सर्विसेज है, बाकी जो सारी सर्विसेज है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आती हैं. देन पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस विल बी इम्पैक्टेड. सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस को हमें ट्रीट करना होगा एज कॉमन गुड, जैसे हम अंटार्कटिका को करते हैं. देन बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क एक रिक्वायर्ड होगा. देन कोलैबोरेशन चाहिए लाइक माइंडेड स्टेट्स के बीच में. द डेवलपिंग ड्यूअल यूज प्लेटफॉर्म्स फॉर डिटरेंस पर्पजेज एंड सिक्योर सैटेलाइट असिस्टेड कम्युनिकेशंस. उसके बाद सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनियंस capabilities should be strengthened by establishing dedicated teams and deploying specialized equipment for effective intelligence gathering and analysis. So these can be the initiatives for preventing weaponization of space. Next हमारी न्यूज़ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बेसिकली मतलब होता है माइज्म, या इंडिया में उसे बोलते हैं नक्सलाइट्स. सो इसकी कोर फिलोसफी क्या है? इसकी कोर फिलोसफी ये है कि it seeks to overthrow the established system of power through violent means. तो एक ये इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं जो कि रेडिकल लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, और उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको ओवरथ्रो करना और एक नया सिस्टम लेके आना, वो भी वायलेंट मीन्स के थ्रू. देन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बर्थ ऑफ नक्सलिज्म हैपेंड इन नक्सलबारी विलेज इन 1967. So those areas which are affected by Naxalism, they are known as Red Corridor areas. तो इसके अंदर जो आपकी स्टेट्स आती हैं वो आती हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला. So these are the states that come under Red Corridor. What are the factors that had led to emergence of left-wing extremism? पहली बात तो socio-economic and cultural factors. First of all, there is high level of poverty, there is high level of inequality, which fuels the support for left-wing extremism, especially in the rural areas. Then land acquisition that happened, it displaced many farmers and tribes already poor थे, और land acquisition से उनके पास जो बचा कुछ था वो भी चला गया. फिर कल्चरल एलियनेशन था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, कहीं ना कहीं उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से भी उनके अंदर ये फीलिंग आई जो प्रेजेंट सिस्टम है दैट इज़ नॉट राइट. देन गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स, जो भी वेलफेयर मेजर्स चलाए गए उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया. देयर वाज हाई लेवल ऑफ करप्शन इन दोज इनिशिएटिव्स, दैट्स वाई जो विश्वास है गवर्नमेंट से वो उठ गया. देन माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी थी उसका माल फंक्शनिंग थी. देन पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन, स्लो पेस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर्टिकुलरली ट्राइबल पॉपुलेशन. तो ये एक था. ना इंडिया के अंदर हम बात करें तो लास्ट 12 ईयर्स में लगभग 77% तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो वायलेंस है वो कम हुई है, और जो डेथ्स हैं सिविलियंस या सिक्योरिटी फोर्सेस को 85% तक डिक्लाइन हुई है लास्ट डिकेड में. इन 2020-2021 इंसिडेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड द रिजल्टेंट डेथ्स हैव डिक्लाइंड बाय 24 and 27% रिस्पेक्टिवली. तो एक ह्यूज डिक्लाइन है एक लास्ट 10 ईयर्स में विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. Now, what are the important initiatives that have been taken? So अगर हम पहली बात करें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन बनाई है MHA ने इन 2006. उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि होलिस्टिक मैनर में इस इशू को देखा जाए, उसको एड्रेस किया जाए. सेकेंडली, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन 2014 वॉज लॉन्च्ड. तो ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है जिसमें सिक्योरिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गया,
और राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज हो गए, इन सबको एड्रेस किया जाएगा। तो मल्टीपल लेवल्स पे ये स्ट्रेटजी काम करेगी। देन नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम इन विच सेंटर विल रीइंबर्स द स्टेट्स affected states expenditure relating to training and operational needs. Then special central grant assistance for critical gaps in public infrastructure and services, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए ग्रांट्स मिलेंगे। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स भी दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर एक सिविल एक्शन प्रोग्राम होगा जिसमें जो गैप है सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल पीपल के बीच में, उस गैप को फिल करने की कोशिश होगी इस प्लान के अंदर, मतलब कोशिश की जा रही है उस प्लान के अंदर। देन इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, तो रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 एंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली। सो जो आपकी रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 है वो कौन डेवलप कर रहा है, वो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री कर रही है, और जो आपका रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन देयर इज अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है। देन देयर इज वन लास्ट प्रोग्राम दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रन कर रहा है, जिसमें 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को मॉनिटर करेगा और उनको डेवलप करेगा। देन वन मोर इनिशिएटिव इज देयर दैट इज नोन एज समाधान। तो समाधान के अंदर देयर आर 8 पिलर्स फॉर फाइटिंग माओइज्म। पहली चीज स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, हार्नेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। सो इन सब एरियाज पे वर्क करते हुए LWE को हम लोग टारगेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका आता है न्यूज इन शॉर्ट्स। तो पहला आपका है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट। तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हर साल ये रिपोर्ट रिलीज करता है। ये एक स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो इसके ऊपर रिसर्च ये करता है। अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो 5 बिगेस्ट स्पेंडर्स जो 2022 में थे वो थे US, चाइना, रशिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। They accounted for 63% of the world military spending. India alone has had a military expenditure of $81.4 billion, जो कि 4th लार्जेस्ट है 2022 के हिसाब से। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो $2,240 billion were spent in 2022 over military expenditure only. 3.7% एक्सपेंडिचर हैज राइज। वर्ल्ड का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो लास्ट ईयर 3.7% से ग्रो हुआ है। नाउ इंडिया के एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो 23% ऑफ द टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर गोज फॉर कैपिटल आउटलेज, यानी मिलिट्री में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 23% हम लोग उसको वो शेयर है। देन इंडिया एम्स टू अचीव एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 35,000 crore by 2025. The next is IDEX, Innovation for Defense Excellence. Make in India notified 3 open general export licenses for export of parts, component and transfer of technology, major platforms and equipment. Now next news आपकी आती है Command Cyber Operations and Support Wings. Army to raise CCOSW for handling cyberspace challenges. So ये एक आर्मी ये चीज़ एक रेज करेगी, तो ये आपका हो गया Command Cyber Operations and Support Wings. Then next is first एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन, जो कि US और 10 कंट्रीज ने इसको अभी डिक्लेयर किया है। तो ये एक्चुअली स्पाईवेयर्स के अगेंस्ट है। अब अगर स्पाईवेयर्स की बात करें तो स्पाईवेयर्स आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मैलवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट द एंड यूजर्स नॉलेज. It invades the device, steals sensitive information and internet users data and relays it to advertisers, data firms और external users. इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो CERT-In has released the ransomware report of 2022. CERT-In comes under Ministry of Electronic and Information Technology. It is a national nodal agency for responding to computer security incidents. Key highlights of the report. It says that ransomware incidents have gone up by 53% in 2022 over 2021. Lockbit, ये नाम ध्यान रखना है, and Makeup, तो ये दोनों प्रिवेलेंट रैंसमवेयर्स हैं। उसके बाद DGU और स्टॉप रैंसमवेयर, ये तीसरा रैंसमवेयर है। उसके अलावा और नए वेरिएंट से वाई सोसाइटी एंड ब्लू स्काई।
सो दीज कैन बी आस्क्ड, इनको आप ध्यान रखिएगा कि लॉकबिट हो गया, मेकअप हो गया, DJVU और स्टॉप रैंसमवेयर हो गया, फिर वाइस सोसाइटी हो गया और ब्लू स्काई, दीज आर द नेम्स ऑफ द रैंसमवेयर। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। Then a new type of you can say incidents are coming up, जिसे हम बोलते हैं ransomware as a service। ransomware as a service का मतलब ये है कि ransomware को सर्विस की तरह देना। जैसे ransomware को यूज किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज उसको यूज कर सकते हैं कि वो ransomware को इंस्टॉल कर देंगे लोगों कस्टमर के कंप्यूटर्स पर, देखेंगे कि उनके जो हैबिट्स हैं वो क्या है, और उन हैबिट्स के थ्रू वो नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे। द नेक्स्ट इज मेकॉप एंड फोबोस रैंसमवेयर। तो ये बेसिकली मीडियम और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं, और DGVU और स्टॉप वेरिएंट्स इंडिविजुअल्स को अटैक करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन रैंसमवेयर आर द कैटेगरी ऑफ मालवेयर दैट गेन्स एक्सेस टू सिस्टम एंड मेक्स देम यूजेबल फॉर इट्स इललेजिटिमेट यूजर्स। द नेक्स्ट इज आपका क्रिप्टो रैंसमवेयर एनक्रिप्ट डिफरेंट फाइल्स ऑन टारगेटेड सिस्टम्स। तो यानी इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स को और फिर आप उसको खोल नहीं सकते, उसको खोलने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है लॉकबिट रैंसमवेयर। लॉकबिट रैंसमवेयर क्या है? ये मैक डिवाइसेस जो आपकी एप्पल डिवाइसेस है उनको टारगेट करता है। तो पहला ऐसा रैंसमवेयर है जो कि स्पेसिफिकली एप्पल कंप्यूटर्स के लिए ही बनाया गया है। तो ये क्या करता है, ये इसे ABCD वायरस भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा, और एनक्रिप्ट करने के बाद उन फाइल्स के पीछे जो एक आपका एक्सटेंशन होता है वो आ जाता है ABCD फॉर्म में, इसलिए हम बोलते हैं इसको ABCD वायरस। इसको हम क्रिप्टो वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में पेमेंट मांगता है आपसे उन फाइल्स को दोबारा से खोलने के लिए, उनको डिक्रिप्ट करने के लिए। और एक तरह से ये क्या है, रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल, यानी इससे पैसा अर्न किया जा रहा है इस रैंसमवेयर के थ्रू। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने क्या है, एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है टू फैसिलिटेट बैलेंस बिटवीन नारकोटिक सब्सटेंस अवेलेबिलिटी फॉर मेडिकल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल यूज एंड लॉ कंप्लायंसेस। तो ये एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। जो ये CBN है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, and it deals with the international trade of narcotics drugs under ambit of the United Nations Convention and Provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act 1985। देन नेक्स्ट आपका आता है पार्ले बैलिस्टिक मिसाइल। पार्ले बैलिस्टिक मिसाइल DRDO ने डेवलप किया, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज है 150 to 500 किलोमीटर्स, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से प्रोपेल किया जाता है। Then there are some important exercises that were in news. First one is SLINEX। SLINEX को आप याद रखो, SL से होता है श्रीलंका, तो ये इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है। Then next is एक्सरसाइज कवच। ये अंडमान एंड निकोबार कमांड में होती है ये एक्सरसाइज, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड चारों जो हमारी एजेंसीज है वो चारों मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। देन कोप इंडिया 23, ये इंडिया और US एयरफोर्स के बीच में होती एक्सरसाइज। देन एक्सरसाइज ओरियन। एक्सरसाइज ओरियन जो है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, देन जर्मन एयरफोर्स, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब इस फ्लाइंग एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। तो ये पार्ट हो गया ओरियन का। देन इन्योसोच, तो ये है क्या, ये इन्योसोच क्या, ये एक मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि ग्रीस एयरफोर्स ने होस्ट की थी इस ईयर। So with this last news, we have completed our society part of the April 2023 current affair. In the next video, we are going to cover the ecology part.